industrial webinar. So Dr. Ruchika, are we ready to go? Yes, ma'am. Okay. Once again, a very warm good afternoon and a very warm welcome to all the students, all the faculties of the Department of Physiotherapy, and a very warm welcome to our clinical expert, our industrial trainee, Dr. Harsh Rajdeep sir. And we all wishes you a very happy new year from the Department of Physiotherapy, Suresh Ganbihar University. So let me introduce to Sir Harsh Sir. Harsh Sir is a senior physiotherapist who is having 17 years of clinical and academic experience. He is working with the government of Rajasthan and also specialized in psychotherapy and advanced yoga. He is the resource person of various training essential skills and also providing the honorary physiotherapy services to sports team, health clubs, geriatric groups, defense services, NGOs, and ergonomic programs for corporates. Presently, he is working as an in charge in the Department of Physiotherapy at Government MBS Hospital of Medical College in Kota, Rajasthan. So welcome you all and thank you for being the part of this industrial webinar. And I hope that our students which are from the first year and second year BPT will be very delighted to hear you, as we all faculties also as a professional we have heard you, and it is a very warm, very a delighted manner to listen you in every conference and in every webinar and in every workshop. So, sir, the complete virtual platform is up to is over to you. You can present your screen. Thank you, Sonam ma'am. Am I audible and visible? Yes, sir. Okay, so thanks a lot to the coordinator, head of Department of Physiotherapy, Dr. Sonal Verma ma'am, the dear colleagues, Dr. Ruchika Pal ma'am, and Dr. Ajit. It's very good to have so many students of physiotherapy with me. I'm also a student like you people. बस फर्क सिर्फ इतना सा है, मुझे फील्ड में करीब 24 साल हो गए, आपको 2-3 साल हुए हैं. Nothing, no difference. So with this note and with all the new year wishes to all of you, I will start today's session. I will try to share my screen. Once it is visible, just let me know. So is the screen visible to all of you? Yes, sir, it is visible. Okay, ma'am. Okay. So my heartiest New Year wishes to all of you. As you can see on the screen, there is a icon, a superhero welcoming all of you, especially the students who have joined this esteemed course of ours, our mother profession, that is the field of physiotherapy. So I would like to congratulate all of you कि आपने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है मेडिकल प्रोफेशन को ज्वाइन करना. और मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन करना हम सब बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की हमेशा से इच्छा रहती है. So you have taken the right step. That is why he is clapping for you, telling you, you people have done a very good, a great job. Before starting today's session,
I would just like to tell you in brief what we are going to discuss in the coming 35 to 40 minutes. I'm not going to take much time of yours. What we are going to discuss is about our profession physiotherapy. आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने सेकंड ईयर में भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एंड यू विल बी गोइंग अहेड विथ योर स्टडीज इन द थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर. You all are blessed enough to have such an esteemed university and all the elite faculties teaching you and giving you the knowledge. But what comes, फिजियोथेरेपी जो हमारा मदर प्रोफेशन है, एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है, और मेरे मन में तो पास आउट होने के बाद भी डाउट था कि फिजियोथेरेपी में आखिर हम करेंगे क्या, हाउ आर वी प्लेस्ड इन द सोसाइटी, हाउ आर वी प्लेस्ड इन द मेडिकल प्रोफेशन, हम क्या क्या काम कर सकते हैं. और बहुत धीरे से मैं बोलूंगा, जो सबके मन में इच्छा होती है लेकिन कोई पूछता नहीं है, हम कमा कितना सकते हैं. So everybody is having that urge that we should be respectable in the society and we should be able to earn a handsome salary or remuneration, what we call as a lucrative amount. So physiotherapy, my dear friends, it is a noble as well as a lucrative medical profession. This is an initiative which I am doing, and this is organized by your esteemed university, Department of Physiotherapy, Suresh Gyan Vihar University. So we'll go on a ride of 30 minutes. 30 मिनट्स हम फिजियोथेरेपी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे. हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या रिस्पेक्टेबल है और क्या हाइट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. Before starting today's session, on a sad note, I would just like to mention all of you that this was a pandemic era of COVID-19. हम सबको पता है. And in this era of COVID-19, our physiotherapy profession has worked tremendously 24/7. All the physiotherapists have done a great job. Many physiotherapists have worked 24 hours in the ICUs, treating and rehabilitating the patients suffering from corona, that is COVID-19. आपके स्क्रीन पर जो पिक्चर्स दिख रही हैं, these are some of our respected physiotherapy professionals जिनको हमने पिछले कुछ महीनों में खो दिया है. इसलिए खो दिया है कि मानवता की सेवा करते हुए इन सबको भी कोरोना ने छोड़ा नहीं. These are just few pictures. On your extreme left, in the blue background with a white shirt and mustache, is Dr. Shiva. Next to him, somewhat bald, a physiotherapist having a baby in his lap, is a dear friend of mine, my batchmate, Dr. Bhavesh Topiwala. On your extreme right is Dr. John from Bengaluru. Then next to him, in black and white striped shirt, again a very dear friend of mine, Dr. Abhishek Singh Thakur. In the center, ये एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे प्रोफेसर हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो चेन्नई में थे और इंडिया में और वर्ल्ड ओवर जितने भी बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनमें से अधिकतर उनके स्टूडेंट्स हैं. What I'm trying to say is the professors who are teaching today, they are his students, and he is प्रोफेसर A.G. दंडपानी. इनके अलावा भी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनको हमने इस टाइम खो दिया है. आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, क्यों ना हम 1 मिनट का मौन धारण करके इनको एक आत्मिक श्रद्धांजलि प्रदान करें. सिर्फ 1 मिनट का मौन, अपना अपना स्क्रीन ऑन रखें और सिर्फ इनके लिए भगवान से प्रार्थना करें, प्लीज.
Om Shanti. You can all be relaxed. My sincere gratitude to all of you for being so patient. And I think it is our sincere homage and duty to pay tributes to all the medical professionals and all the professionals who have sacrificed their lives for serving humanity in this tough era. Let's be relaxed. We are going ahead with our today's session. आपके स्क्रीन पर जो ये पिक्चर आ रही है, everyone can recognize the man on the left. Yes, he is our Prime Minister मोदी जी. एक्सट्रीम राइट में जो हैं वो भी सब जानते हैं, इंडिया के एस क्रिकेटर इरफान पठान. और मिडिल में जो हैं, आप में से बहुत से लोग जानते हैं जो इस फील्ड में हैं, और जो इस फील्ड में नए हैं मैं उनको बताना चाहूँ, ही इज आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर KM अन्नामलाई. ही इज हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट at Apollo Hospital, Ahmedabad. What I am trying to say, he is a core heart physiotherapist. और प्रधानमंत्री मोदी जी उनको पकड़ के खड़े हैं. That means देश को फिजियोथेरेपी की कितनी जरूरत है आप सोच सकते हैं. इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. जब हमारे प्रधानमंत्री जी, he was Chief Minister of the state of Gujarat, I think for more than 10 years. For all the 10 years, he was undergoing physiotherapy treatment, and he was undergoing physiotherapy treatment through many physiotherapists, and he is one of the most respectable physiotherapists, Dr. KM अन्नामलाई, जो उनको physiotherapy services देते थे. और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री फिजियोथेरेपी को हर जगह ड्यू रिकॉग्निशन देते हैं. मैं आप लोगों से सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कई बार आपके दिमाग में या कई लोगों को ये बोला जाता है फिजियोथेरेपी में बहुत कुछ नहीं है. अगर बहुत कुछ नहीं होता तो देश का प्रधानमंत्री फिजियोथेरेपी को अपने हाथ से ऐसे पकड़ के नहीं रखता. और वो हमेशा फिजियोथेरेपी की हर जगह तारीफ करते हैं, और इस टाइम तो उन्होंने बहुत बोला है कि फिजियोथेरेपिस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. Most of the students can recognize this actress is Anil Kapoor. No, I'm sorry, she is daughter of the respected Anil Kapoor. Yes, all of you know she's Sonam Kapoor. ये पिक्चर डालने के पीछे रीजन ये है कि इनकी मूवी आई थी एक खूबसूरत. आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा. इसका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है जो डीजे में चलता है और हम सब डांस भी करते हैं. अगेन इस मूवी में सोनम कपूर, शी प्लेड द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट. मतलब पॉलिटिकल एरियाज में पूरी कंट्री में फिजियोथेरेपी की डिमांड है. इवन द बॉलीवुड इज रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. वो फिजियोथेरेपी बेस पे पूरी फिल्म बना रहे हैं. इस एक्ट्रेस ने एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल प्ले किया था. अगेन आपके स्क्रीन पर जो पेपर कटिंग आई है, आप में से बहुत से लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत छोटा है. मैं आपको सिर्फ बता देता हूं. व्हाट दिस इज सेइंग इज, among all the professions of the world, all over the world जितने भी प्रोफेशंस हैं, उनमें अगर टॉप सेटिस्फैक्शन वाले प्रोफेशंस देखें, ऐसे प्रोफेशन जिनमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन या जिनमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी कम्स एट रैंक 3rd एंड इट इज एट 78%. मतलब फिजियोथेरेपी हमारा एक इतना अच्छा प्रोफेशन है जिसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है. वी आर सर्विंग ह्यूमैनिटी, तो हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हमें इससे अर्निंग्स भी मिल रही हैं. तो ऐसे प्रोफेशन बहुत रेयर होते हैं जहां प्रोफेशनल को संतुष्टि भी हो, अर्निंग्स भी हो और आपको मानवता की सेवा का मौका भी मिले. सो यू पीपल आर वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव कम इन दिस प्रोफेशन, दैट इज फिजियोथेरेपी. I will be just telling you about all the nuts and prunes of our profession physiotherapy जो all over the world recognition है, ताकि हम सबको ये पता चले कि हमारा प्रोफेशन कितना अच्छा है. That is why I always call it is mother profession physiotherapy. It is our bread and butter. World Health Organization जो हम सब ने पढ़ा हुआ है, WHO, और WHO की डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है, the definition of health. All the medical professionals know health is a state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
मतलब यहाँ पर भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। और WHO ने फिजियोथेरेपिस्ट को कैटेगराइज किया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से प्रोफेशंस को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैटेगराइज नहीं किया हुआ। हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है फिजियोथेरेपिस्ट का, जिसका ISCO कोड जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 2264 है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड है, कैटेगराइज्ड है। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद बोलता है फिजियोथेरेपिस्ट आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट अपने इंडिपेंडेंस लेवल पे खुद पेशेंट को असेस, ट्रीट और रिहेबिलिटेट कर सकते हैं बाय फिजियोथेरेप्यूटिक मींस। ये एक बहुत बड़ी बात है। दैट मींस वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोफेशन, वी आर इंडिपेंडेंट। हम जब पढ़ के और बाहर निकलेंगे तो हम अपने दम पर अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल, अपना डिपार्टमेंट रन कर सकते हैं। That means we are not at all dependent on other professions. We are related to other professions. We are working as a member of rehab team, but we are not dependent. We are independent. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कहता है। Coming to what is physiotherapy? फिजियोथेरेपी की टेक्निकल डेफिनेशंस हम बहुत सारी बुक्स में पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताता हूं। हम सबकी इच्छा थी जब हम 11th 12th पढ़ रहे थे, we had a curiosity for science and human body. We feel joy in helping people, and we were all having a dream of joining a medical profession. इसीलिए तो हमने बायो लिया था। We were fascinated by human body. We were in habit of helping people. हम चाहते थे हम लोगों की मदद करें, and we all wanted to join a health science profession. और ये तीनों हमारे ड्रीम फिजियोथेरेपी फुलफिल करता है। तो फिजियोथेरेपी में पेशेंट को फिजिकली बाय इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मींस, बाय मैनुअल थेरेपी एंड बाय एक्सरसाइज थेरेपी गैजेट्स हम ट्रीट करते हैं। कमिंग टू अ वेरी सिंपल कंपैरिजन जो हर जगह नहीं बताया जाता, मैं आपसे इसलिए शेयर करूंगा ताकि हमें फील होना चाहिए कि हमारे हाथ में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। ओपियोइड्स, हो सकता है आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा हो, मैं आपको सिंपल बता दूं, ओपियोइड यूज की जगह आप स्क्रीन पर समझें पेन किलर्स और मेडिसिन। एक जगह है फिजिकल थेरेपी, दैट इज फिजियोथेरेपी, एंड एक जगह है पेन किलर्स। जहां पे भी पेन किलर यूज किए जाते हैं, दे आर जस्ट मास्किंग द पेन, वो पेन को ढक रहे हैं, ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वाइल फिजियोथेरेपी इज ऑलवेज ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ द पेन और पेशेंट को पूरी तरह क्योर कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा प्रोफेशन हमें कितना अच्छा पेन को रूट कॉज से ट्रीट करने का मौका देता है। ऑब्वियसली जब हम मेडिसिन यूज करते हैं उसके कारण कुछ लोगों को मेडिसिन एडिक्शन, डिप्रेशन, स्टमक, बाउल डिस्टर्बेंसेस और सबसे बड़ा विड्रॉल सिम्टम्स या ओवरडोज होता है, और इन सब के कारण दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। फिजियोथेरेपी अगर प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइब की जाए विथ एन अप्रोप्रिएट डोसेज, इट इज नेवर हैविंग these withdrawal symptoms, addiction, depression. In fact, it improves the mobility, it improves the independence and always decreases the pain. ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर पेन किलर्स को लंबे टाइम तक लिया जाए तो लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट पहुंच जाता है, बट अगर फिजियोथेरेपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से की जाए तो लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट किया जाता है। लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा उदाहरण बताऊं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, या अगर स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाए बिकॉज यू आर फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर, घुटनों में जो दर्द रहता है यूजुअली हमारे दादा दादी नाना नानी को, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी चोट के कारण नहीं हुई, इट इज रिलेटेड टू एज एंड इट स्पेसिफिकली अफेक्ट्स द वेट बियरिंग जॉइंट्स। अब जब उनको दर्द शुरू होता है, अगर वो हमेशा पेन किलर्स लेते रहेंगे तो उनको एडवर्स इफेक्ट्स भी होगा और उसका एडवर्स इफेक्ट किडनी और लिवर में होता है। लेकिन अगर प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उसके लिए लेते हैं तो कुछ समय बाद फिजियोथेरेपिस्ट कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेस उनको घर के लिए बता देंगे जिसको वो लंबे समय तक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। पेन रिलीफ भी है, मूवमेंट भी है और कोई नुकसान भी नहीं है। दैट इज लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट ड्यू टू फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ऑलवेज इंप्रूव्स अलर्टनेस एंड एनर्जी लेवल, बल्कि बहुत से ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अलर्टनेस को कम करते हैं।
एंटी डिप्रेसिव डल करते हैं, एंटी एंजाइटी ये सब एनर्जी लेवल डाउन करते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताने के लिए कि फिजियोथेरेपी फील्ड हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। आपको स्क्रीन पर ये एक छोटा सा बेबी देखकर शायद हंसी आ रही होगी, और एक कार्टून है जिसमें एक सो कॉल्ड थेरेपिस्ट किसी पेशेंट को मार रहा है। What I'm trying to convey is just look at these two pictures. A baby who's dancing with the nipple in his mouth. ये आप और हम हैं। जब हम कॉलेज में आते हैं हमें लगता है ये तो बेस्ट टाइम है मस्ती करने के लिए। So we used to enjoy all the parties, all the birthdays, all the occasions. हो सकता है आप सब लोग बहुत अच्छे पढ़ाई वाले हो, पर मैं उस टाइम नहीं था। हमारा सिर्फ एक ही एम होता था, कॉलेज का मतलब मस्ती करना है और एग्जाम टाइम पे पढ़ाई करना है। मस्ती करना ठीक है, लेकिन मस्ती करने के बाद पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, एंड स्पेशली इन आवर फील्ड we have to learn all the practical techniques, and if we don't learn the practical techniques nicely during our student times, हम ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट होकर निकलेंगे जो पेशेंट को मार रहे हैं या पेशेंट का नुकसान कर रहे हैं। That means we have to enjoy our college life, but we have to keep a balance, so that we should study also seriously, and we should learn all the practical techniques. We should learn all the practical techniques which our teachers teaches us, so that once we pass out, we are always a good acquainted physiotherapy professional. Next, बहुत सी बार ये डाउट होता है कि फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सिर्फ ये दिमाग में होता है, either I can work in some clinic, or if I'm good in studies I can go for MPT and I can be a teacher. This is right, but there are many opportunities nowadays. For example, a physiotherapist can definitely join a hospital, a department of physiotherapy in a hospital in your city, that is the capital of Rajasthan, Jaipur. ऐसे कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हैं। दे आर वेरी वेल रन बाय ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट, एंड नॉट अ सिंगल फिजियोथेरेपिस्ट। 8-8, 10-10 फिजियोथेरेपिस्ट की टीम भी है कुछ हॉस्पिटल्स में, which are running the physiotherapy department very well. Secondly, physiotherapists are best suited to work as a rehabilitation expert. That is why they are a preferred choice for rehabilitation centers. Fitness centers, or to be very general in the term, gymnasiums. In gymnasiums, we are the musculoskeletal expert, we are the movement expert, so we can join there as an advisor, so that we can help all the people what sort of exercises according to their body, what sort of exercises are recommended for them, what sort of stretchings are recommended for them, how ahead they should go for improving their cardiac endurance, what weights they can lift according to the DLOMS and Watkins, or according to the progressive registered exercises, ताकि उनकी strength training हो. Again, a physiotherapist is a very good health counselor, because एक फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को एक दिन नहीं देखता है, बहुत दिन तक देखता है। A small example, अगर आप में से या मेरे को कभी फीवर होता है तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर हमें चेक करके कुछ मेडिसिन लिख देंगे और बोलते हैं 5 दिन ये मेडिसिन ले लो, अगर ठीक नहीं होता है तो 5 दिन बाद आना, एंड बाय गॉड्स ग्रेस हम 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। दैट मीन्स हम डॉक्टर से एक बार मिले, उसके बाद हमें डॉक्टर से दोबारा मिलने का मौका ही नहीं मिला। बट इन आवर फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी, व्हेन अ पेशेंट इज कमिंग फॉर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, चाहे वो सर्वाइकल पेन हो, मैं जनरल टर्म्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप स्टूडेंट्स रिलेट कर पाए, चाहे वो सर्वाइकल पेन हो, लो बैक पेन हो, स्पोर्ट्स इंजरी हो, और पैरालिसिस के बाद हो, वो पेशेंट हमसे डेली मिलेगा फिजियोथेरेपी के दौरान, और डेली उसके फिजिकल रिहेबिलिटेशन के साथ साथ हमें उसको मेंटल लेवल पे भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। सो वी आर द बेस्ट सुटेड टू बी अ हेल्थ काउंसलर। नेक्स्ट, MNCs आर मल्टीनेशनल कंपनीज। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, जितनी भी IT कंपनीज हैं जो अभी पेंडेमिक एरा में वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, वो हर जगह से फिजियोथेरेपिस्ट को हायर कर रही हैं, because most of their professionals are doing their work sitting from home, और prolonged sitting के कारण neck pain, back pain, all sort of pains are developing, and the best person to
give a cure for these is physiotherapist. So not only medical companies or medical avenues, even companies like Satyam, Infosys, Accenture, IBM, Lenovo, they all are recruiting physiotherapists ताकि उनके जो प्रोफेशनल्स हैं उनका वर्क इंप्रूव हो, बल्कि वो ज्यादा बीमार न पड़े. नेक्स्ट, जो बेस्ट ऑप्शन सबको लगता है अपना क्लिनिक ओपन करने का, दैट इज प्राइवेट क्लिनिक्स. Next to that is home visits. Many physiotherapists, they go and provide home physiotherapy services to patient. The best part in this is home visit is a very lucrative thing because you can ask for your fees whatever you feel like according to your caliber. आपकी क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है और मान लीजिए आप उससे 400-500 पर सेशन चार्ज करते हैं, when you are going to the patient's home to provide physiotherapy services, that is understood, आप उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि आप पेशेंट के घर जाकर सर्विस दे रहे हैं. तो ऐसे भी फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशनल्स जो शायद किसी जॉब में नहीं हो या अपना क्लिनिक नहीं हो, अगर उनके पास दिन भर के 3 से 4 होम विजिट्स भी होते हैं स्टार्टिंग में, दे आर अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट. एंड द बेस्ट पार्ट इज विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. वो बिजनेस में कहते हैं ना, जहां लागत कम हो और वहां पर प्रॉफिट निकले, उससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है. फिजियोथेरेपी में तो ये चीज हमें सबके सामने दिखती है. नेक्स्ट, द नोबलेस्ट थिंग इन आवर फिजियोथेरेपी प्रोफेशन इज वंस यू पास आउट you can become a very good teacher. Like you all are blessed here to have Dr. Sonam Verma, Dr. Ruchika Pal, Dr. Ajit with you people. They are all exemplaries in their field. They have done post graduation और आज आपको टीच कर रहे हैं. साथ ही साथ वो पेशेंट्स भी देखते हैं. तो कितनी अच्छी बात है, एक फिजियोथेरेपिस्ट एज अ टीचर भी है, आप सबको टीच भी कर रहे हैं, एंड दे आर सर्विंग ह्यूमैनिटी ऑल्सो. आप में से भी जिसका इंटरेस्ट हो आगे चल के हायर स्टडीज करके टीचिंग जॉब प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिसर्च, जिसके लिए बहुत बार कहा जाता है ईबीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. जैसे सारी फील्ड में रिसर्चेस होती हैं, फिजियोथेरेपी फील्ड में भी रिसर्च होती है. और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप में से कोई रिसर्च करके आगे बढ़ेगा और उसके नाम का कोई आर्टिकल किसी पेपर में या जर्नल में पब्लिश हो, या उसके नाम की कोई बुक पब्लिश हो. सो रिसर्च इज ऑलवेज अ वेलकम स्टेप फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट. पीजी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन. जैसा कि मैंने कहा, अभी आप जो कोर्स कर रहे हैं, दैट इज बीपीटी, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ 4.5 years. Those of you who are good in studies, or even those who are not good in studies, students like me, those who are not good in studies but they wish to go ahead in their profession, they can opt for the master's program, that is MPT, in any of your fields of interest, that is post graduation, either in sports physiotherapy, musculoskeletal, orthopedic, neurological, pediatric, community based rehabilitation. ये क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आगे चल के आपको बिल्कुल पता चलेगा. मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि हमारे फिजियोथेरेपी फील्ड में कितना स्कोप है. करने को बहुत कुछ है, टाइम बहुत कम है. सो वॉट एवर यू फील लाइक, यू कैन डेफिनेटली go for these avenues. These are some of the paper news which have recognized physiotherapy. In the topmost column, you can see the king of Bollywood industry, Shah Rukh Khan. He is praising physiotherapy. वो फिजियोथेरेपी की तारीफ करते हैं और वो हमेशा कहते हैं, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, मैं अपनी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से कराऊंगा, चाहे उनका नी हो, उनका नेक हो, वो हमेशा फिजियोथेरेपी प्रेफर करते हैं. एक्सट्रीम राइट साइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें बिग बी, अमिताभ बच्चन किसी व्हाइट कोट के साथ खड़े हैं. वो व्हाइट कोट वाले जो पर्सन है वो जोधपुर के युवराज हैं, और उनको जब पैराप्लेजिया हुआ था तो उनके पैराप्लेजिया के बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए कहा था कि यू विल बी एबल टू स्टैंड ओनली इफ प्रॉपर फिजियोथेरेपी इज गिवन टू यू. एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी उनकी इतनी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट हुई, उनकी अच्छी फिजियोथेरेपी हुई, उनकी इतनी अच्छी फिजियोथेरेपी हुई कि जब वो वापस यूनाइटेड किंगडम यूके में डॉक्टर्स को दिखाने गए तो डॉक्टर्स ने कहा आपका बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन हुआ है, एंड नाउ ही इज वॉकिंग विद सपोर्ट. तो फिजियोथेरेपी इतना बड़ा मिरेकल कर सकता है. बिग बी, अमिताभ बच्चन हमेशा फिजियोथेरेपी की तारीफ करते हैं. और ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो आपको लेफ्ट साइड में एक सरदार जी दिख रहे हैं जिनका नाम है पवनदीप. उनको मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप कभी नहीं चल पाओगे, बट विद फिजियोथेरेपी डॉक्टरों ने कहा खड़े नहीं हो पाएंगे, पर मजबूत इच्छा शक्ति से चलने लगे पायलट पवनदीप. इच्छा शक्ति के साथ साथ जब कॉलम में डिटेल में पढ़ते हैं,
उनकी फिजियोथेरेपी इतनी एक्सटेंसिव हुई कि वो बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी चल पाए। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन शूटिंग। इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट की है इंडिया में, और उन स्पोर्ट्स एकेडमीज को जो रूल कर रहे हैं वो हमारे सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा रोल है हर इंडस्ट्री में। आपके स्क्रीन पर जो पिक्चर है, गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के साथ जो खड़े हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर पटेल। आपके स्क्रीन पे राइट साइड में पीवी सिंधु, उनके साथ जो खड़े हैं दैट इज डॉक्टर किरण चल्लुगुड़ा, ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये इनके पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आपकी स्क्रीन पे बॉटम में जो पिक्चर है, राइट साइड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर में है वो उनकी वाइफ किरण राव, शी इज अ प्रोड्यूसर आल्सो, और उनके बीच में जो खड़ी हैं शी इज आर रिस्पेक्टेड डियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कनुप्रिया। दंगल जो मूवी आई थी जो रेसलिंग बेस्ड थी, उसमें सारे रेसलर्स की इंजरीज को इन्होंने ठीक किया था डॉक्टर कनुप्रिया ने। दैट मीन्स फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, एंड यू कैन जस्ट इमेजिन देयर अर्निंग्स। ये तो एक रिस्पेक्ट की बात है, ग्लैमर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी अर्निंग्स भी ऐसी हैं जो आप और मैं हमारे सोच के भी बियॉन्ड है, इतनी अच्छी अर्निंग्स है। बट इस सबके पीछे एक डेडिकेशन था, उनकी मेहनत थी, जिसके कारण वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, लास्ट 5 मिनट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैं हर जगह शेयर करता हूं। जो एक पेपर न्यूज आपको दिख रही है, उसमें जो आपको एक बॉलर दिख रहे हैं, ही मिस्टर भुवनेश कुमार, इंडियन क्रिकेट टीम के माने हुए बॉलर हैं। कुछ समय पहले इनको सीवियर पेन हुआ अपनी बॉडी में, मैं आपको आगे चल के बताता हूं कहां पर। एंड बिकॉज ऑफ द पेन ही वॉज नॉट एबल टू डू बॉलिंग, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। जब उनको चेक किया गया, उनके स्कैन्स हुए, एमआरआई स्कैन हुए, दे ऑल केम नॉर्मल। मेडिकल टीम ने उनको एग्जामिन किया और उन्होंने एग्जामिन करके बताया कि इनको कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, ही इज फिट फॉर मैच, और वो मैच में खेल सकते हैं। अगेन जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की, एक ही बॉल में उनको सीवियर पेन हुआ। तो कहीं ना कहीं एमआरआई स्कैन्स, डॉक्टर का एग्जामिनेशन साथ में नहीं जा रहा था उनकी प्रॉब्लम के। तब जो टीम के फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन फिजियोथेरेपिस्ट ने उनको जस्ट फिजिकली असेस किया विदाउट एमआरआई स्कैन्स एंड विदाउट एनी गैजेट्स, और उन्होंने उनको इवेल्युएट करने के बाद बोला कि इनको शायद स्पोर्ट्स हर्निया है, एंड बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स हर्निया इनको इतना पेन हो रहा है। जब फिजियोथेरेपिस्ट के इसके स्टेटमेंट को कंफर्म किया गया हॉस्पिटल्स के एग्जामिनेशन के साथ, और वो स्पोर्ट्स हर्निया ही निकला, और वो इतना हर्निया था कि अगर वो एक मैच भी और खेलते तो वो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती थी। अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फिजियोथेरेपिस्ट अगर डेडिकेशन से और ऑनेस्टी से अपने प्रोफेशन को फॉलो करें तो हमें स्कैन्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और हम सिर्फ अपने फिजिकल एग्जामिनेशन से बता सकते हैं कि फिजिकली क्या प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को और क्या ट्रीटमेंट है। तो आप देखिए, जब सारे इन्वेस्टिगेशंस फेल हो गए, तब एक फिजियोथेरेपिस्ट ने आकर के इंडियन टीम के एस बॉलर भुवनेश कुमार को रेस्क्यू किया और उनको बचाया। सो कुडोज एंड अप्लॉज to that physiotherapist and our profession of physiotherapy. Coming to the last 2 to 3 minutes of our talk, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक डेटा है। अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको बता दूं, इस डेटा में ये कहा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वे किया गया, and it was surveyed that what all professions will be in good demand in the coming 10 years. And it was said that physiotherapy will be the most demanding profession all over the world. मतलब फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड all over the world 22% बढ़ने वाली है compared to other professionals. तो ये हम सबके लिए कितनी अच्छी न्यूज है कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उसकी इतनी डिमांड है। बाय द ईयर 2028 22% इंक्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड में। इसीलिए शायद आपने देखा होगा या आप सुनते होंगे, not only in India but in countries like United States of America, Australia, New Zealand, Germany, physiotherapists are the most respected healthcare professionals and the most earning healthcare professionals also. तो अगर हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, there is no boundary for any of us. Last, a small thought from my end, which is taken from the experts of Gita. क्षणश कणशेव विद्यामर्थ च साधयेत,
Kshanatage kuto vidya kanatyage kuto dhanam. That means knowledge should be gained through minute by minute efforts. मतलब जो हमारी अभी पढ़ाई चल रही है, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड ही क्यों ना हो, जो भी हमारे लेक्चर्स हो रहे हैं, हमें मिनट बाय मिनट उनको अंडरस्टैंड करना है. वी शुड नेवर वेस्ट टाइम and we should utilize each and every moment, because if you waste time, how can you get knowledge? And if you waste resources, how can you accumulate the wealth as well as health? That means each and every minute we have to utilize. Either we are a student or either we are a professional. ये हमें प्रॉमिस खुद से करना है. और जब हम इस प्रॉमिस को फुलफिल करते हैं, तो we will always be not only a physio, we will be a proud physiotherapist. Proud in the sense, आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ करके निकलेंगे, वो इंस्टीट्यूट प्राउड फील करेगा आप पे कि आप कितने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट निकले हो. हर जगह आपकी तारीफ होगी. पीपल विल बी क्लैपिंग फॉर यू, and for you even sky will not be the limit. You will be flying in the sky. So this is all from my end. Just a glimpse into our mother profession, physiotherapy. All the very best to all of you. You have joined this esteemed elite profession, a respectable professional. I am sure all of you are going to do your best and flourish in your field, because you have all the resources, a very good department of physiotherapy under the auspices of Suresh Gyan Vihar University and all the esteemed faculties. My sincere gratitude to Dr. Sonam ma'am, Dr. Ruchika ma'am, and Dr. Ajit sir, and the Vice Chancellor sir of the university for inviting me on this forum. Thank you all the students for having me. It's over to you, Ruchika ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. It's always very motivational to hear you, sir. It's not our first time, but it is always a motivational and very delightful to hear you all the time. Thank you, ma'am. Thank you. And sir, this is the best possible way to tell about physiotherapy in all fields. As such, you have told everything about physiotherapy to students. I know, I think there is no confusion regarding this to our students now. Thank you, ma'am. Thank you. So, any queries regarding this? I don't think so. Everyone is saying thank you only. क्वेरीज नहीं आने के पीछे दो ही कारण होते हैं. सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया. तो मैं मान के चल रहा हूँ सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि हमने we all have tried to give all the positive aspects of medical profession. और बहुत कुछ पॉजिटिविटी है. अगर स्टूडेंट, मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ये स्टूडेंट सब इतने अच्छे हैं. If they all are studying hard, there is no limit, there are no boundaries, and they can see all of you as their example. And I'll be delighted to serve any of the lectures in future also to university. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, students are saying, sir, they will do their best. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Good afternoon. Thank you, Ajit sir. Nice to see you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. My pleasure, ma'am. Okay, so we are now at the end of this Industrial Connect, and there is no doubt. I hope everyone has understood very well about the physiotherapy profession. And so definitely, whenever you come to Jaipur, definitely we would like you to invite and come to university and just have a meet with students, sir. Thank you, ma'am. Sure, for sure. Thank you, sir. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, sir. So now I am ending this meeting now.